Welcome my dear students, welcome to Holistic Education by Kaushal ma'am. Today we are going to discuss the poem of class 6th from Honeysuckle book, The Quail, and the poetess of The Quail is Eleanor Farzin. First of all, we will talk about the poetess Eleanor Farzin. Yes, here you can see on the slide, Eleanor Farzin, born on 13th February 1881. A famous children's book author and the poetess. She was born in London and she was the only girl child among the 3 other siblings. The older brother is Harry and the 2 younger brothers, they are Joseph and Herbert. Yes, talking about Harry was a composer and Joseph and Herbert, they were writers. So this is a family of writers. Now, as a child, when she was child, she had poor eyesight and she spent most of her time. In spite of that she has a poor eyesight, she has spent most of her time with the books. Her father always encouraged her to write. Yes, let's talk about the poem The Quail by Eleanor Farzin. Yes, this is a short poem. And in this poem, the poet shares an incident when a fight broke between her brother and her. And they did not know even why they were quarreling. Initially, they did not know, right? And it was a small fight, but soon it becomes strong. Fight बहुत छोटे मुद्दे से शुरू हुई, परंतु जब मुद्दा बढ़ता गया, क्योंकि बहस होती गई ना, argument is there. The quarrel starts with a tiff, that is a slight argument, and then it changes into big arguments. Why it changes into big argument? Because there are different opinions. You are right, I am wrong, I am right, you are wrong. तो इससे क्या होगा? But and they are giving their evidences also कि मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया. तो वो जो बातें चलती गई, तो रीजन ही भूल गए कि क्या रीजन था, लड़ाई हुई क्यों, right? And the poet says after that what happened? The full day is ruined. पूरा दिन जो था वो ruined हो चुका था. And lastly हम पोइम में देखेंगे कि ब्रदर ही केम टू हर एंड देन ही टोल्ड हर दैट दे कैन नॉट रिमेन लाइक दिस, है ना, आपस में लड़कर तो हम नहीं रह सकते. सो ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक एंड द पोएट शी फॉरगिव्स हिम एंड द फाइट इज फाइनली फिनिश्ड. वी कैन से इट इज फाइनली सेटल्ड, राइट? सो लेट्स कम टू द स्टैंजा नंबर 1 ऑफ द पोएम. यस, so here we are with the first stanza. I quarreled with my brother. I don't know what about. भूल गए ना लड़ते लड़ते. One thing led to another and somehow we fell out. The start of it was light, the end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong. Nice rhythm is there. Rhyme scheme is there. I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing led to another and somehow we fell out. I quarreled with my brother. Another, about, out. So here you can see the rhyme scheme. Brother. Rhyme scheme के बारे में जानते हैं ना? तो brother जो है यहाँ पे first rhyme है, तो A. यहाँ A होगा. Then brother and another. So both are AA. And then about and out. Then it is BB. Then slight and right CC. Then strong and wrong DD. Right? So rhyme scheme क्या बनेगी? AB. C D C D, rest. Yes. So here the word is fell out. Fell out means not dropping down. गिर गए ऐसा नहीं है, right? गिरना नहीं है. यहाँ भी लड़ाई कर रहे थे आपस में और फिर गिर गए, नहीं, ऐसा नहीं. Fell out means to have an argument or disagreement. आपकी argument हुई है, आप disagreement हुई है और उसके चलते जो है that ends the relationship. और एक relationship जो था वो end हो गया. That is fell out. और you can say it's an idiom, right? और इस idiom के बारे में अगर हम बात करें, to have one's relationship with someone completely diminished, completely finish हो जाए जब relationship argument के चलते हुए, तो that is fall out. So here in the first stanza, the poetess says, I quarreled with my brother, I don't know what about, one thing led to another and somehow we fell out. राइट, अब यहाँ फेल आउट का मीनिंग जो है वो आप समझ गए होंगे कि फेल आउट का मीनिंग गिरना नहीं है. फेल आउट का मीनिंग है कि एक क्वार्ल के बाद
एक डिसएग्रीमेंट हुई, लड़ाई हुई, आपस में आर्ग्यूमेंट्स हुई और उसके बाद रिलेशनशिप का एंड होना, दैट इज फेल आउट. सो द पोएट सेज दैट शी क्वार्रेल्ड विद हर ब्रदर एंड आई डोंट नो व्हाट अबाउट, शी कुड नॉट फिगर आउट कि आखिर रीजन क्या था, है ना, रीजन क्या था. बिकॉज वन आफ्टर अनदर बात बढ़ती चली गई, एक रीजन से दूसरे रीजन बनता चला गया, बिकॉज बोथ ऑफ देम दे आर अब्यूजिंग ईच अदर, राइट. वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट हो गए हम. अब हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, इसकी स्टार्टिंग तो बहुत स्लाइट थी, हल्की थी, स्मॉल थी, यू कैन से. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रांग, बट इसका एंड बहुत स्ट्रांग था क्योंकि हमने जो है अपना रिलेशनशिप तोड़ लिया था आपस में. ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. बिकॉज ब्रदर क्या कह रहे हैं, ब्रदर सेड दैट ही वॉज राइट एंड द पोएटेस वॉज रॉन्ग. वेयर पोएटेस क्या कह रही है कि नो, आई एम राइट, you are wrong. In the second stanza, we hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. We can't go on all night." I was in the wrong, so he was in the right. Wow. So, what the poetess say here, we hated one another. लड़ाई के बाद एक दूसरे को वो पूरी तरह hate करते हैं. After the fight, they started hating each other. एंड द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. आफ्टरनून टर्न ब्लैक मीन्स पूरा दिन जो है आर्ग्यूमेंट के बाद बिल्कुल खराब चला गया, इसीलिए आफ्टरनून जो थी वो ब्लैक हो गई. आपस में किसी ने बात नहीं की एक दूसरे से. द होल आफ्टरनून दे डिड नॉट टॉक एंड हेंस इट वेंट बैड फॉर देम. देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक. देन सडनली हर ब्रदर पैटेड ऑन हर बैक, है ना, उसको बात करने के लिए उसने इसको हिलाया कि हाँ सुनो क्या कहना है. Come along, we can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right. So her brother patted on her back and said that they can't remain so throughout the night. ऐसे क्या पूरा दिन पूरी रात जो है लड़के निकालेंगे हम आगे, है ना, ऐसे लड़ते रहेंगे, आज भी लड़ेंगे, कल का दिन फिर लड़ेंगे. एंड दैट ही वॉन्ट्स टू सेटल द मैटर, बट नाउ ही वॉन्ट्स टू सेटल द मैटर. चलो सेटल करते हैं हम अपने मैटर को. सो द ब्रदर ही एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक, द पोएटेस शी फॉरगिव्स हिम एंड फाइनली द फाइट इज सेटल्ड. सो इन द एंड द पोएट सेज दैट नाउ ही वाज इन द राइट. अब वो ठीक है ना, क्योंकि उसने माफी मांग ली है. सो प्रोबेबली शी कंसिडर्स हिज एक्सेप्टिंग मिस्टेक एज अ राइट डिसीजन. तो सो ही वाज इन द राइट, है ना. लास्ट लाइन पे ध्यान देना कि पोएटेस ने यहाँ क्या कहा है. पोएटेस ने कहा फाइनली फाइट तो सेटल हो गई तो इन द एंड में पोएटेस सेज दैट नाउ ही वाज इन द राइट. हाँ, अब उसने माफी मांग ली, दैट इज राइट. एंड शी कंसिडर हिज एक्सेप्टिंग मिस्टेक एज अ राइट डिसीजन. ये डिसीजन उसने सही लिया है. So in the end, the brother accepts his mistake and the poetess she forgives him. And finally, the fight is settled. So in the end, the poet says that now he was in the right. The line is he was in the right. So she considered his accepting mistake as a right decision. कि अगर उसने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया है, दैट इज़ द राइट डिसीजन. वो उसने राइट डिसीजन लिया है. और वी कैन से शी इज़ एक्सेप्टिंग दैट ही वॉज राइट एंड शी हरसेल्फ वॉज रॉन्ग. या ये भी कह सकते हैं कि शी इज़ एक्सेप्टिंग, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही है दैट ही वॉज राइट, कि वो ठीक है और वो अपनी मिस्टेक को, और वो ये रॉन्ग है इसलिए वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करती है. सो वट एवर हर थॉट में भी, जो भी उसका थॉट होगा, लास्ट में फाइट जो है वो सेटल्ड हो जाती है एंड बोथ ऑफ देम आर फ्रेंडली अगेन. सो इन द पोएम द क्वार्रेल, द लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर यूज्ड आर, दैट इज मेटाफर. What is metaphor? Metaphor is used to make a comparison. यहाँ पर comparison करना between two things that are not alike. Same नहीं है ये चीज़ें, but do have something in common. पर इनमें एक चीज़ common है. For example, we fell out. It doesn't means to fall down, but यहाँ पर रेफर क्या कर रहा है वो डिसएग्रीमेंट के बारे में, क्वार्रल के बारे में, जो उनमें आपस में लड़ाई हुई है उसके बारे में. जब वो रिलेशनशिप टूट रहा है, that is fell out. And then they are saying afternoon turned black, and then that also does not mean that day become dark. दिन डार्क हो गया, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था. बट द पोएट्स का जो डे था दैट वेंट बैड, दिन बुरा हुआ, दैट मीन्स आफ्टरनून टर्न ब्लैक. सो इट इज अगेन अ मेटाफर.
फिर पर्सोनिफिकेशन भी कही गई है यहाँ पे। पर्सोनिफिकेशन यानी कि ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को हम जो है एट्रीब्यूट करते हैं एनिमल्स या नॉन ह्यूमन थिंग्स के साथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, हियर आफ्टरनून को क्या कहा गया, उसे पर्सोनिफाई कर दिया गया, है ना। इन रियल में क्या था कि पोइट का जो डे था दैट वेंट बैड। देन एलिट्रेशन इज देयर, रिपीटिशन इज देयर, सो अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। अकरेंस होना, बार बार रिपीट होना लेटर का या साउंड का। कैसे, यहाँ पर आप ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, स स्टार्ट में स है, ऑफ इट वॉज स्लाइट, एस स्लाइट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम द क्वाल बाय एलेनोरा फार्जीन. So we can say the moral of the poem is that fights and quarrels are a part of our lives. लड़ाई झगड़ा तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, but we make difference when we ask for forgiveness, even after knowing that the other is wrong. ये भी जानते हुए कि दूसरा गलत है, फिर भी अगर हम माफ़ी मांग के फाइट को सेटल करते हैं, that is the main thing. So hence the one who tries to reconcile and ask for forgiveness is wiser than the other. बुद्धिमान वही है जो माफ़ी मांग के लड़ाई को ख़त्म कर दे। तो प्यारे बच्चों, लड़ते हैं हम, क्यों लड़ते हैं? क्योंकि हमारे बिलीफ जो है, हमारे जो डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हमारे जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, उसके कारण हम आपस में लड़ते ज़रूर हैं, बट उस स्मॉल सी फाइट को हमें ख़त्म करना है with taking some wise decision. Forgiveness देनी है एक दूसरे को और उस फाइट को हमें सेटल करना है. Thank you very much. Bye bye.